Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will discuss about the collision of two objects. We all know what is a collision. So दो ऑब्जेक्ट का टकराना collision कहलाता है और we can define the collision, the mutual interaction between two bodies for a very small time. We can say that the mutual interaction of two bodies for a instant, किसी एक टाइम इंस्टेंट के लिए जो बॉडी एक दूसरे से मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, कॉलिजन कहते हैं, और मिलने के बाद ये एक दूसरे से दूर हो जाती है तो दैट इज द कॉल कॉलिजन. अब कॉलिजन कितने टाइप्स का होता है? कॉलिजन तीन टाइप्स का होता है: इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन एंड परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन. परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन. एक और होता है सुपर इलास्टिक कॉलिजन, दैट वाज फोर्थ वन. आपकी कोर्स में सिर्फ यही तीन है. सुपर इलास्टिक कॉलिजन भी कह सकते हैं, सुपर इलास्टिक कॉलिजन, राइट. सो व्हाट इज अ इलास्टिक कॉलिजन? फर्स्टली, elastic collision of two bodies is that collision in which the momentum of the colliding bodies is conserved and the kinetic energy of colliding bodies is also conserved. Is that means जो total momentum है colliding bodies का initial में टकराने से पहले, तो टकराने के बाद में दोनों का momentum वही रहेगा. Is that means momentum will be conserved. Clear? And the kinetic energy also be the conserved. Total kinetic energy before collision, that is equal to the total kinetic energy of colliding bodies after the collision. Clear? So kinetic energy and momentum both are conserved. That is the elastic collision. Inelastic collision, a collision in which the momentum is conserved but the kinetic energy is not conserved. जिसमें momentum तो conserved होता है but kinetic energy conserved नहीं होती. Is that means the some part of the initial kinetic energy is converted to the another part of energy. Like that, when two bodies are collide to each other, then the some part of kinetic energy may be converted into the sound energy, light energy or heat energy also. Clear? So kinetic energy is not conserved but momentum is conserved. Perfectly inelastic collision, the perfectly inelastic collision is that inelastic collision in which the colliding bodies move with the same velocity after the collision. That means कि दो बॉडी एक साथ कंबाइन होके चलने लगे कॉलिजन के बाद, तो कॉलिजन कैसा कहलाता है? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन कहलाता है. एंड द सुपर इलास्टिक कॉलिजन इज दैट कॉलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज. कोलाइडिंग बॉडी की अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो उस कॉलिजन को क्या कहते हैं? सुपर इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं. सो नाउ लेट अस कंसिडर अबाउट द इलास्टिक कॉलिजन. किसे कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन? जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व है एंड काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो भी द कंजर्व. तो इसका कुछ एग्जाम्पल है. इसके एग्जाम्पल्स में हम परफेक्टली जो इलास्टिक कॉलिजन है वो है द कॉलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते रहते हैं, या कॉलिजन ऑफ द आयंस ऑफ द कंडक्टर्स. जो कॉलिजन है वो क्या होते हैं? इलास्टिक कॉलिजन होता है. टकराने से पहले वो जिस स्पीड से आते थे, जो उनका मोमेंटम है, टकराने के बाद भी उनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है. ठीक है, तो कॉलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स is the perfect example of the elastic collision. Now we will discuss about the elastic collision in one dimension. Elastic collision in one dimension, that is means if we have the two bodies moving with the initial velocity m1 u1 and the second object of mass m2 moving with the velocity u2. After that they will collide to each other, that is m1 and m2. Clear? And after collision both the masses are moved with the final velocity v1 and v2 in the same direction.
ठीक है, तो दैट वाज द कंडीशन बिफोर कॉलिजन. Before collision, and that was during collision, and that was after the collision. ठीक है, तो किसे कहेंगे इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन? व्हेन द कॉलिजन इज इलास्टिक कॉलिजन एंड द कोलाइडिंग बॉडीज मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर द कॉलिजन. सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसे क्या कहेंगे? इलास्टिक कॉलिजन कहेंगे. अब इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन कहेंगे. तो अब बात करते हैं इलास्टिक कॉलिजन में. मैंने क्या बताया था कि मोमेंटम कंजर्व होता है. सो मोमेंटम इज कंजर्व, दैट मीन्स टोटल इनिशियल मोमेंटम यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू किसका होगा? फाइनल मोमेंटम यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2. अब इसमें क्या करते हैं, 1 वाली टर्म्स एक साथ और 2 वाली टर्म्स एक साथ रख के हम m1 कॉमन ले सकते हैं. तो m1 इज कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, यहाँ बचेगा दैट इज u1 माइनस v1. सिमिलरली इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो m2 कॉमन, देन वी गेट द वैल्यू v2 माइनस u2. दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट वाज द इक्वेशन सेकंड. क्लियर? अब नाउ द फॉर काइनेटिक एनर्जी, kinetic energy is also conserved. is that means total initial kinetic energy half, इसकी kinetic energy कितनी होगी? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू द टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ 1/2 सब में से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं हम. और जैसे हमने ऊपर किया m1 और m2 टर्म्स एक साथ रखिए और उसको इसी टाइप की इक्वेशन में चेंज करने की कोशिश कीजिए. तो कैसे? दैट इज m1 u1 स्क्वायर और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू सेम m2 v2 स्क्वायर. यहाँ एज इट इज रहेगा बट इस टर्म्स को इधर ले जाएंगे तो माइनस m2 u2 स्क्वायर. आफ्टर दैट यहाँ पर हम m1 कॉमन लेंगे तो u1 माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. क्लियर? अब दैट वाज द इक्वेशन थर्ड. डिवाइड द इक्वेशन 2 एंड थर्ड. अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें सो देन वी गेट divide the equation 2 by the third. So we get m1 u1 square minus v1 square upon m1 u1 minus v1 is equal to m2 v2 square minus u2 square upon m2 v2 माइनस u2. राइट? इस इक्वेशंस को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया गया. तो यहाँ m1 कैंसिल, इधर m2 कैंसिल और हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले में हम इसे तोड़ सकते हैं. तो ये हो जाएगा u1 माइनस v1 एंड u1 प्लस v1 अपॉन u1 माइनस v1. इससे यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली इस तरफ तो v2 माइनस u2 एंड v2 प्लस u2 अपॉन v2 माइनस u2. तो इससे ये कैंसिल, तो हमारा बचता है यहाँ पर दैट इज u1. आफ्टर दैट u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 और वी कैन से दैट u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1. तो ये है कंडीशन फॉर द इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन. द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज दैट इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ velocity of approach is always equal to the velocity of separation, where the u1 is greater than u2, so the v2 is also greater than v1. ठीक है, तो कंडीशनली हम इनको वैल्यूज को पुट कर सकते हैं
और यहाँ से v1 की वैल्यू पुट करके इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखें तो हम v1 और v2 की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं. सो दैट वाज द collision, elastic collision in one dimension. We can get the value of v1 and v2 from solving the equation first and fourth. अगर इसे फोर्थ इक्वेशन कह दिया जाए. Right class? So that was the elastic collision in one dimension. In next class we will discuss about the elastic collision in two dimension and the inelastic collision. Clear? And the coefficient of restitution. Thank you.